जरूर उस गीत को गाना चाहूंगा। वो बच्चों अनुमति देता है क्या हमको गाने के लिए? यस 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 अंकल, स्वागत है स्वागत है। ऑलराइट, डेविड ओके। से बोलो, डेविड बोलेगा, डेविड से बोलो। अंकल को बोल दो, अंकल वही सॉन्ग गाया जो अभी आपने गाया है ना, वही सॉन्ग गाएंगे अंकल ने। स्वागत, वेलकम। मैं गाऊं डेविड, मैं गाऊं वो गाना? हाँ, स्वागत। हाँ, स्वागत है। वेरी गुड। वो बहुत मुझे बहुत पसंद है वो गाना। ठीक है, बहुत याद दिलाया आप गाकर। ठीक है। थैंक यू। Alright. സർവ നന്മകൾക്കും സർവദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാം എൻ യേശുവേ. സർവ നന്മകൾക്കും സർവദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാം എൻ യേശുവേ. നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദിനമും പരനേ നന്ദിയാൽ. നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദിനവും പരനേ നന്ദിയാൽ. ആഴത്തിൽ ഞാൻ കിടന്നു, കൂരിരുൾ എന്നെ മറപ്പിടിച്ചു. ആഴിയാഴത്തിൽ ഞാൻ കിടന്നു, കൂരിരുൾ മറപ്പിടിച്ചു. നാഥൻ തിരുക്കരം തടിയേ തേടിയെത്തി, തിരുമാർവോട് ചേർത്തണച്ചു. നാഥൻ തിരുക്കരം തേടിയെത്തി, തിരുമാർവോട് ചേർച്ചണച്ചു. സർവ നന്മകൾക്കും സർവദാനങ്ങൾക്കും ഉറവിടമാം എൻ യേശുവേ. നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദിനവും പരനേ നന്ദിയാൽ. നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുന്നു ദിനവും പരനേ നന്ദിയാൽ. Thank you, thank you. These are the two stanzas the children sang, David and his वेरी sister. वंडरफुल सॉन्ग एंड बहुत बहुत ही प्यारा गीत है। इसको अंकल, यदि आपकी अनुमति है तो इसी गाना का हिंदी में गा सकता हूँ एक स्टेंजा। Yeah, sure. Sure, go ahead. सर्वश्रेष्ठ प्रभु, सर्वदाता प्रभु, सब आशीषों के आधार हो। सर्वश्रेष्ठ प्रभु, सर्वदाता प्रभु, सब आशीषों के आधार हो। तेरी मैं स्तुति करूं और दिन प्रतिदिन कहूँ धन्यवाद। तेरी मैं स्तुति करूं और दिन प्रतिदिन कहूँ धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ प्रभु, सर्वदाता प्रभु, सब आशीषों के आधार हो। तेरी मैं स्तुति करूं और दिन प्रतिदिन कहूँ धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. और मलयालम का अर्थ पूरा दीपू निकाल दिया वो गाने में. So I think all of you will understand the meaning of that Malayalam song. Jitendra and Rajendra Bhai, you understood that. And देव कुछ बोलना चाहता है। and the stanza Ari Arathil Nyan Kadando. I was lying deep in a pit. That is या one अधोलोक line. में उसका एक और लाइन है, अधोलोक में मैं पड़ा और सकेती से बहरा। And then I was in total darkness, and in the darkness you
held my hand. और जब अधोलोक में मैं पड़ा था तब मेरा कोई सहायक ना था, लेकिन तूने मेरा हाथ थाम लिया। Yeah, your hand searched for me in the darkness. और तेरे हाथ ने मुझे उस अंधकार में सकेती में ढूंढ, And you hugged me to your breast. You hugged me to your breast. Deepu? दीपू का नेट चिपक गया सब ये नेट प्रॉब्लम। Okay, okay. दीपू बाहर है क्या? जी जी सर, इंदौर इंदौर। वो इंदौर में है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और दीपू इनोस ट्रांसलेट कर सकता? जी जी सर, जी यस सर। विनोश हाँ यस अंकल, हाँ, जब तक so भैया थे तब तक करते हैं। okay, इंग्लिश में बोला करो सर, के लिए इंग्लिश में बोला करो। yeah, so the last line was that you hugged me to your breast. That is what he's singing to the Lord. और जो आखिरी लाइन थी जो गाने में थी, इसका मतलब ये है कि प्रभु ने मुझे अपनी छाती से गले लगा लिया। So that is such a beautiful song, you know. और ये बहुत सुंदर गाना है। All right, wonderful. So thank you, children, David and your sister, I think. No, thank you very much. God bless you both for singing that song. और धन्यवाद डेविड सोफिया, बहुत अच्छे गाने के लिए जो तुम लोगों ने गाया। परमेश्वर तुमको आशीष करे। God bless every one of you who sang, because I joined only when David and Sophia were singing. But before that, all of you must have sung. So God bless all of you. और जो सभी ने जो गाना गाया, जो आज का जो गाना था, सभी को प्रभु आशीष करे, और सभी लोग जुड़े हैं उनको भी प्रभु आशीष करे। Okay, wonderful. So thank you, Vinosh, for being available for translation. God bless you. थैंक यू अंकल। All right, we will continue. Like Rajinder Bhai gave a beautiful introduction. He actually gave a summary of what we studied last week. I'm so very impressed and I appreciate that very much. Thank you, Rajinder Bhai. और जो आज का जो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, जो आज का सब्जेक्ट है, वो राजेंद्र भाई ने जो सभी को बता दिया है कि हम भजन संहिता से 121 से हम सब पढ़ रहे थे, और उनने जो मेरा वेलकम किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। All right, we will continue learning from Psalm 121. और हम भजन संहिता 121 को फिर से आरंभ करते हैं उसको। Now, this psalm, many Bible scholars say, was written by King David. Enosh, you're also not there? Yes, uncle, I'm audible. Now you're audible. I could not hear you. But did you hear me? Yes, uncle, I hear you. Yeah. So I said, so David wrote this Psalm 121 when he was the king of Israel. और जब दाऊद इस्राएल का राजा था तब उसने ये भजन संहिता लिखी थी। And you know why he wrote this 121st Psalm? और क्या आप सभी लोग जानते हैं कि ये उसने ये भजन संहिता क्यों लिखा? He was writing in order to encourage his people. क्योंकि वो अपने जो लोगों को प्रोत्साहन करना चाहता था। And especially he was writing to his soldiers to keep their hearts right before the God of heaven. और वो इसलिए भी लिखना चाहता था ताकि उसके जो सिपाही लोग थे वो अपने दिल को प्रभु यीशु मसीह के प्रभु के सामने रख दे। Now, as I said last week, this psalm can be used when you are traveling, when you are in a journey. और जो मैंने पिछले हफ्ते तुमको बताया था, तो सभी को बताया था कि जो ये भजन संहिता है इसको जो जर्नी और जो यात्रा के वक्त इस्तेमाल करा। Yeah, so one of the Bible scholars says that this psalm was written when the children of Israel go on a pilgrimage to Jerusalem. और जो बाइबल के जो रचयिता जो लोग थे जिन्होंने डिग्री प्राप्त करी थी, उन्होंने इस बाइबल को भजन संहिता को जब
जो बच्चे यात्रा कर रहे थे उस वक्त लिखा था। You see, Jerusalem, the temple of Jerusalem was on the hill, on a mountainous area, on a hill. और आप देखते हो कि जो यरूशलेम है वो एक पहाड़ के ऊपर है। And the temple, the Jews have to go there regularly every year. और वहाँ जो मंदिर है वहाँ के जो यहूदी लोग हैं वो वहाँ पे हर साल जाते हैं। At least 3 times a year, they have to go to the temple of Jerusalem. और जो वहाँ के जो यहूदी लोग हैं वो एक साल में 3 या 4 बार वहाँ पे उस मंदिर में जाते हैं। 3 times, Enosh. 3 बार। Yeah. Now, when they travel on the journey up the hill to the temple, they sing the psalm. और जब वो यात्रा करते हैं उस मंदिर की ओर जाने के लिए तब वो ये गाना गाते हैं। Because this psalm is like a blessing when you are going on a journey. क्योंकि ये जो भजन संगीता है ये एक आशीष की तरह है यात्रा में। You said, as I said, King David wrote this psalm to encourage his soldiers and the people of Israel. और जैसा कि जो बताया था कि जो राजा दाऊद ने इस गाने को क्यों लिखा ताकि वो अपने लोगों को प्रोत्साहन कर सके यात्रा में। And also, as I said, this mount, the temple of Jerusalem was on Mount Zion, which is a hill. और ये जो मंदिर है जो अंकल जी ने अभी बताया कि ये एक पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। And it is that mountain is called Mount Zion. और जो पहाड़ का नाम है उसका नाम है जायन। Yeah. So when they climb that, they sing this song and they go. और जब कोई उस पर चढ़ता है तब ये गाना गाता है। Now, when we meditate all the 8 verses, you will understand the meaning of this psalm. और जब हम उस भजन संहिता 121 का जो पूरे 8 के 8 जो वचन है उसको यदि हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो उसमें पूरा लिखा हुआ है। You see, David writes to encourage his soldiers and his people that you are not alone when you're traveling. और जब राजा दाऊद ने ये जो गाना है वो इसलिए लिखा था ताकि वो अपने लोगों को प्रोत्साहन कर सके और ताकि वो लोग अपने आप को अकेला ना समझे। That is right. And help is always available for them. और हमेशा उन सभी के लिए मदद मौजूद रहे। He also tells his people and his soldiers that when you trust in the Lord, it is not a waste. और राजा दाऊद हमेशा अपने लोगों को बताता था कि यदि अगर तुम प्रभु पे विश्वास करोगे तो हमेशा तुम अकेले नहीं रहोगे। Not only akela, it is not a waste. Sometimes we think, no, it is useless to trust in this God. He cannot help us. Don't think like that. That is what David was telling his people. और राजा दाऊद और बोलता है कि जो अपने लोगों को कि ये बर्बाद नहीं जाएगा ये समय, और हमेशा प्रभु के पीछे विश्वास से बने रहो। Correct. You see, normally there are 3 things, 3 messages that are contained in Psalm 121. और जो भजन संहिता 121 में देखते हैं कि 3 जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो लिखी हैं। Correct. महत्वपूर्ण बात. 3 big truths are there. Number 1, the Creator God is your helper. और पहली बात ये है कि जो प्रभु है वो तुम्हारा मददगार है। Not just Prabhu, the Creator God. जो संसार का सृष्टि करता परमेश्वर। Yeah, that is important. It's not just an ordinary God. The Creator God, that's the first thing. The Creator God is your helper. और जो पहली महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सृष्टि का रचयिता परमेश्वर वो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। The second truth is the God of Israel is your protector. He protects you from all evil and harms. और दूसरी बात ये है कि जो इस्राएल का परमेश्वर है वो हमेशा तुमको सुरक्षित करता है, तुमको एकदम प्रोटेक्शन देता है। And the third truth is the Lord not only protects you once, but always protects you from all dangers. और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर तुमको एक बार मदद नहीं करता, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे संग रहता है और हमेशा तुम्हारी मदद करता है जब भी तुम मुश्किल में हो।
Yeah, you see, if you read verse 8, there is a beautiful promise in verse 8. और अगर हम जो 8 वचन में पढ़ते हैं वहां पे एक बहुत अच्छा वादा परमेश्वर ने किया है। Read, read verse 8. यस अंकल। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। Up se lekar. What is that? So which means not just 1 day or 2 days, 1 week or 1 month or 1 year. It is every day up to eternity. और परमेश्वर तुम्हारी रक्षा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा करता रहेगा, जब तक अनंत काल तक करता रहेगा। All right. Now also read Hebrews chapter 13 verses 5 and 6. That's another promise there. और हम इब्रानी उसका 13 अध्याय उसका 5 और 6 और पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभारित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी भी तुझको ना त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। You see, these two verses are also the Lord's promise to every child of God. और इन 2 वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो परमेश्वर के बच्चे हैं उन सभी से वादा किया है। You see, he has promised to be with us forever. और इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो हमारे साथ सदा सर्वदा तक बना रहेगा। So if the Lord is with us forever, why should we fear any man? और यदि अगर परमेश्वर हमारे संग है तो हमको मनुष्य से डरने की क्या जरूरत है। You see, we all know about Daniel, isn't it? The prophet Daniel. और हम सुनते हैं जो भविष्यवक्ता दानियल के बारे में। You see, when Daniel was put into the lion's den, all the lions were hungry. और जब हम देखते हैं उसको कि दानियल को जब शेरों की मांग में डाला गया था तब सारे शेर भूखे थे वहां पे। How do we know that the lions were hungry? और हम कैसे जानते हैं कि जो शेर भूखे थे? After Daniel was taken out of the lion's den, the king ordered all the people who blamed Daniel, they and their families and their relatives, to be put into the lion's den. You remember that? और जब हम देखते हैं कि दानियल को जब शेर की मांग में डालने के बाद उसके जो लोग थे, उसके जो परिवार के लोग थे, उनको भी वहां पे डाल दिया था। आप सबको याद आया? Yeah, when their families and when they were put into the lion's den, the Bible says before they landed inside the cave, the lions tore them and ate them. So much hungry the lions were. और हम देखते हैं कि जब दानियल के परिवार और उनके साथी लोगों को जब उसमें शेर की मांग में डालने से पहले ही, जब वो नीचे उतरने से पहले ही शेरों ने उनको पकड़ा और काट पीट के खा गए। But none of the lions touched Daniel. और उसमें से किसी भी शेर ने दानियल को नहीं छुआ। You see, that is how God protects God's children. और आपने यहाँ पे देखा कि कैसे परमेश्वर अपने बच्चों को एक सुरक्षित रखता है। Similarly, Daniel's friends, Shadrach, Meshach, Abednego, they were not even afraid what the king will do to them. और उसकी तरह जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो है, उनको भी परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। Correct. You know, when they were put into the fire, nothing happened to them. और जब उनको जो आग की धधकती हुई जो उसमें डाला गया तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। You see, that is what I was reminded of when I read this Psalm 121. और ये सब बातें जब मैं भजन संहिता 121 को पढ़ते हैं तब ये सब कुछ याद आता है। You see, Psalm 21 tells us about God's protection over his people. और भजन संहिता 121 हमेशा जो परमेश्वर अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है उसकी बातें है उसमें। You see, normally Psalms 120 to 134, they have a common heading. और हम भजन संहिता 120 से 134 तक देखते हैं, वहां पे एक सब कुछ सेम जो है टॉपिक है, हेडिंग है। Topic. Now, topic is songs of ascent. Ascent means when you're climbing up, no, when you're going up, ascending.
you know, when you're going up. So these 120 to 134 Psalms are called Psalms of Ascent. और जब जो टॉपिक है, जो विषय है, उसमें लिखा हुआ है कि जब हम ऊपर चढ़ते हैं तब उसका जो ऊपर चढ़ने का जो वाक्य है, यात्रा है, उसके बारे में। Yeah. So in Hebrew, the meaning for the word ascent is ala, A-L-A-H, ala. Ala means to go up. और हम इब्रानियों में देखते हैं कि जो ऊपर जाने का शब्द है उसको आला बोलते हैं, जिसका मतलब है ऊपर जाना। That is right. You see, now quite often these Psalms 120 to 134, there are many verses which talk about this ascent. और जब हम भजन संहिता उसका 100 से लेकर 134 तक देखते हैं, वहां पे बाइबल में बहुत जो भजन संहिता में लिखा गया है जो इस एसेंट के बारे में, जो यात्रा के बारे में, ऊपर चढ़ाव के बारे में। Meaning these are people who are on a journey from where they are to the hill or to Mount Zion where the temple of Jerusalem is. और इसका मतलब है कि जहाँ जो लोग यात्रा कर रहे हैं अपनी जगह से उस जगह तक जहाँ पे वो मंदिर बना हुआ है उस पहाड़ के ऊपर, इसका नाम जायरा है। You see, so you remember Jerusalem is on a hill. और सभी को याद है कि जो यरूशलेम है वो जो पहाड़ के ऊपर है। And the temple in Jerusalem is also on that hill. और जो यरूशलेम का मंदिर है वो भी उस पहाड़ पे है। So whenever anyone goes to that temple, which they have to do every year, what do they have to do? They have to climb up. They have to go up to Jerusalem. और जो वहां पे जाता है उसको हर साल ऊपर चढ़ना पड़ता है ताकि वो उस मंदिर में जाने पाए। You see, so when on the way, you know what happens when they are traveling to Jerusalem to the temple, they go there to celebrate 3 important festivals every year. और जब वो लोग उस यात्रा को करते हैं, यात्रा को मंदिर तक करते हैं, तब वो मंदिर में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो 3 अपने त्योहार और पर्व मनाने पाए। The first festival is the festival of Passover. और जो पहला त्योहार है वो है फसल का। Paschal, yeah, the Paschal lamb, where the Paschal lamb was killed, you know, when they came out of Egypt. फतेह का पर्व। फसह का पर्व है, फसह का। Passover. So अंकल the आवाज first, मेरा आ रहा है क्लियर? yeah. यस क्लियर है, क्लियर है। All right. So the first festival is Passover. तो पहला जो त्योहार मनाया करते थे वो था फसह का पर्व। So thank you, Enosh, for stepping in. Deepu's come. God bless you, Enosh. Thank you. So the first festival is Passover. The second festival is the Feast of Weeks. You will find that in Exodus 34:22. We can read it so you can understand that in Hindi. The festival, the Feast of Weeks, Exodus 34:22. और उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं जो फसल का पर्व, जिसको हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसका 34 and 22. 34 का 22 हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक 34 का 22। और यहाँ पर लिखा हुआ है सप्ताहों का पर्व को मनाना। The Feast of Weeks. So the first festival is the Passover. The second festival is the Feast of Weeks. और इसमें जो पहला जो पर्व है वो है फसह का पर्व, दूसरा पर्व है वो है हफ्तों सप्ताहों का पर्व। And the third one is the Feast of the Tabernacles. You got that in Exodus 23 verse 16. Exodus 23 verse 16. और उसके बाद जो तीसरा है वो निर्गमन के पुस्तक उसका 23 अध्याय का 16वीं आयत में, और उसमें लिखा हुआ है कटनी का पर्व मनाना। All right. So these are 3 annual festivals with all the Jews have to go to the temple to celebrate. और ये वही 3 पर्व हैं और जिनको मनाने के लिए सालाना यहूदियों को मंदिर में ऊपर जाना पड़ता था।
The first is the festival of the Passover. उनमें से पहला पर्व है फसह का पर्व, Second is the Feast of the Weeks. दूसरा है सप्ताहों का पर्व मनाना, The third is the Feast of the Tabernacles. और तीसरा है तंबुओं का पर्व मनाना। So every Jew has to go to the temple, has to climb the hill 3 times a year to celebrate these 3 festivals. और इसीलिए उन यहूदियों को एक साल में इन तीनों पर्वों को मनाना पड़ता था, और उस पहाड़ पर मंदिर में जाया करते थे वो। And when they climb up, so that is why it's called the Song of Ascents. When they climb up, then they sing this song. और जब वो लोग उस मंदिर पहाड़ करते थे, इसीलिए गीत ऊपर चढ़ने वाला गीत कहा गया है। All right. Now, the Song of Ascents, as the heading is for Psalms 120 to 134, there are totally 15 Psalms that are called the Song of Ascents. और इसलिए हम ये जो 15 भजन हैं, वो भजनों को हम लोग क्या देखते हैं कि ये भजन ऊपर रास्ते पर चढ़े जाने के लिए, उस पहाड़ पर चढ़ने जाने के समय गाए जाने वाले भजन माने गए हैं। So 120 to 134 is how many? 15 steps, 15 Psalms. और इसीलिए जो 22 से लेकर के जब 33 तक देखते हैं, तो क्या देखते हैं, वो कितना है, 15 भजन होते हैं। और यही वो 15 भजन है जो ऊपर चढ़ते समय यहूदी लोग गाया करते थे। In Ezekiel chapter 40 and verse 6 also, this mention of ascents is there. These 15 steps are there, steps to the temple. और जब एजकेल के पुस्तक उसका 40 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि Ezekiel 40 and verse 6, you can read it later, you can make a mention, you can do your personal study. Ezekiel 40 and verse 6. और जब हम एजकेल की पुस्तक 40 का 6 में जब पढ़ते हैं, तो वहां पर भी इसी सीढ़ियों पर चढ़कर जाकर के वो लोग गाया करते थे, जब वो सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाते थे। Yeah, and Bible में पढ़ सकते हैं हम लोग। Okay. And Bible history says that the Levites, the Levites are the ones who will sing, they will play the instruments, the harps, the lyres, the cymbals, the trumpets. They will stand on all the 15 steps and sing and play music. That is what biblical historians say. और हम इस बात को देखते हैं कि उस समय में हम देखते हैं सारे यहूदियों में से परमेश्वर ने यह अधिकार और हक केवल लेवियों को दिया था। लेवी लोग वे थे जो उस समय में जब गीत गाया करते थे, तो झांझ को बजाना, सारंगी को बजाना, दस्तार वाले तारों बाजों को बजाना, जो वाद्य यंत्र हैं, उनको केवल और केवल यहूदियों के लिए ही अनुमति दी गई थी। And the Levites, the Levites will stand on the 15 steps, and for every step, they've got one psalm, starting from Psalm 120, 121, up to Psalm 135, the 134. Every step they will stand and they will sing the psalm as they go to the temple to celebrate the festival. और इसलिए जब वो लोग उस पर्व को मनाने के लिए जाया करते थे, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो लेवीय लोग होते थे, वो 15 जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पर खड़े हो जाते थे, और जैसे ही लोग जाया करते थे, हर एक सीढ़ी के लिए एक भजन, एक गीत को वो लोग गाया करते थे। और इसी प्रकार से वो हर साल इसी प्रकार से जब वो साल में वहां पर बलिदान चढ़ाने के लिए, पर्व मनाने को जाया करते थे, लेवीय लोग इस प्रकार से गीत गाया करते थे और जो वाद्य यंत्र हैं उनको बजाया करते थे।
You see, now in Jerusalem, it's a place known for the coming together of the people of God. All the Jews, all the children of God, the chosen ones will come to Jerusalem. They come together to celebrate. और देखिए विशेषता क्या है कि वहां पर सारे के सारे ये जो इस्राएल के चुने हुए लोग हैं वो सब के सब वहां पर उस पर्व को मनाने के लिए आया करते थे। Now, these three festivals, annual festivals, for that all the Jews have to come to Jerusalem. और देखिए ये जो सालाना जो होने वाला ये जो पर्व है, इस पर्व में हर एक जो चुना हुआ परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ जन थे उन सबको वहां पर उस पर्व को मनाने के लिए आया करते थे। And listen very carefully, when they come there to celebrate these festivals, they are coming there to acknowledge, to say thank you to God for all his goodness and his help. और आप ध्यान से सुनिएगा, जब वो लोग वहां पर उस वहां पर जाया करते थे तो वो लोग इस प्रकार से भजनों को गाया करते थे। उनका तरीका ये था कि वो वहां जा करके परमेश्वर ने जो उनके प्रति भलाई की है उसको क्या करते थे, प्रकट करते थे। And see, and so out of these 15 Psalms, 120 to 134, Psalm 121 is the second Psalm in the Song of Ascents. और इसीलिए जो ऊपर चढ़े जाते समय गाए जाने वाले भजन हैं उनमें से भजन संहिता 121 जो भजन है वो दूसरा भजन है। And Psalm 121, the singer, when he's singing, which is David, when he's singing an individual hymn of thanksgiving. और हम देखते हैं कि ये जो भजन 121 है जो दाऊद जो गीतकार है वो गा रहा है, ये व्यक्तिगत रूप से इस भजन को वो गा रहा है, उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद का गीत है। And as he is climbing, as the song is being sung, as they are climbing the steps to go to Jerusalem, to the temple, they are able to see the hill, they are able to see the temple, and then they are singing this song. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि ये जो लोग जब उस मंदिर में प्रवेश किया करते थे, सीढ़ियों से चढ़कर जाया करते थे, हम देखते हैं कि वो लोग इस भजन को, ये धन्यवाद का गीत है, परमेश्वर की भलाई को स्मरण करते हुए गाते थे। They are singing because they can see the hill, and they are singing that God is guiding the singers' feet. That is, the ones who are singing, their feet, God is guiding them and taking them to the temple. और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसीलिए इस गीत को गाते हैं क्योंकि वो लोग इस चीज को देख रहे हैं कि परमेश्वर है जो उनके पैरों को उस पहाड़ी की ओर जो उन्हें उस पर वो चढ़ते चले जा रहे हैं, परमेश्वर उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। Okay, now to understand this psalm, we can split it into two divisions. और इस भजन को हमको समझने के लिए इसको दो भागों में हम विभाजन कर सकते हैं। One is an individual singer who is saying that he trusts the Lord completely. एक है उनमें से एक व्यक्तिगत जो गीतकार है वो इस बात को गीत के माध्यम से कह रहा है कि मैं परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखता हूँ। Right? Now, then the second portion is there is a person who's responding to David or to the singer and telling them that you can trust this Lord because he will guard you. और दूसरा व्यक्ति है वो इस प्रकार से उनके जवाब में कहता है कि तू उस परमेश्वर पर भरोसा रख सकता है क्योंकि वो भरोसेमंद प्रभु परमेश्वर है। That's right. You see, so verses 1 and 2 is the confession by the one who's singing that he trusts the Lord completely. और हम जब पहली और दूसरी आयत 121 भजन संहिता को पढ़ते हैं तो हम उस व्यक्तिगत व्यक्ति से देख सकते हैं कि वो इस बात को अंगीकार कर रहा है कि वो
मैं पूरी तरह से उस यहोवा परमेश्वर में क्या रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ। And verse 3 to 8 is the respondent, the one who's hearing him, the one who's responding, and says, you can trust the Lord completely because he will safeguard you. और इसलिए वचन 3 और 4 जब हम 3 से आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं वो जो एक व्यक्ति उनके बगल में बैठा हुआ है, खड़ा हुआ सुन रहा था, वो इस चीज को कहता है कि तू उस पर भरोसा रख सकता है, क्योंकि वो भरोसेमंद प्रभु है, वो कभी नहीं बदलेगा। All right, one day a father and a son, they went out and they were climbing, they went to a hilly area. So they were climbing the hills, they were going in the valley. So they went on an adventure. और एक दिन ऐसा हुआ, पुत्र और एक दिन बेटे, क्या हुआ, एक दिन वो जो है पहाड़ियों में और ऐसे पहाड़ी इलाका में घूमने के लिए वो गए हैं, कुछ ढूंढने के लिए। So the father took a small son and they went out. They said, son, come today, we will go on an adventure. So they went to a hilly area. और जो पिता और पुत्र हैं वो दोनों क्या करते हैं, वो कहता है कि चलो बेटा, मैं और आप आज चलते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के घूम करके आते हैं। Suddenly the father heard his son shouting and calling him. और अंततः अचानक से वो देखता है कि उसका बेटा क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, डांट रहा है। The son was telling the father, hey dad, catch me. That's what he said. और वो बेटा कह रहा था, हे पिता, तो मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। And when the father turned to look at where the son jumped straight from a rock down to the hands of the father. और हम इस बात को देखते हैं कि जब वो बेटा उन्हें ऐसे कहा तो पिता ने उसकी ओर देख करके जैसे उसने देखा, क्या हुआ, एक जो बेटा था जो उसकी उस पहाड़ जो है उस पत्थर की चोटी पर वो खड़ा हुआ था, उस चट्टान से क्या किया, उसने छलांग लगा दी, कूद गया वो पिता की ओर। You see, he suddenly jumped. He only said, hey dad, catch me. And he suddenly jumped from the rock, which is at a height, onto his father's arms. और देखिए मेरे प्यारों, हम देखते उस बेटा ने क्या किया, पिता से उसको चिल्ला करके कहा, पिता मुझे पकड़ो। और इतना ही कह करके उस चट्टान पर से, उस ऊंची चट्टान से वो बेटा क्या किया, कूद गया, छलांग लगा दी। This was like a circus act, an immediate and instant circus act. और मेरे प्यार, हम लोग इसको क्या देखते हैं, एक सर्कस के कार्यक्रम के समान हो गया। Now, when the son jumped, when the son jumped, the father held him, but both of them fell on the ground. और उस पिता ने क्या किया, उस बेटे को पकड़ लिया और वो दोनों जमीन पर गिर गए। And for a second, the father could not talk because he was in a shock. और इस बात को हम देखते हैं कि पिता विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि वो अचंभा कर रहा था। And then he looked at his son. He said, son, can you tell me one reason why you did that? Why did you jump? Why did you jump all of a sudden without even informing me? Can you tell me one reason? और उसके बाद में फिर वो पिता उस बच्चे से पूछता है, बेटा क्या तुम मुझे एक भी कारण बता सकते हो, क्या तुम मुझे एक कारण बता सकते हो कि आखिर क्यों तुम एकदम अचानक से ऐसा कह करके कूद गए। And you must listen to the answer which the boy gave. You know what the boy said? प्यारो, ध्यानपूर्वकता से सुनिए, उस बेटे ने क्या जवाब दिया। You know, the boy said, because you are my dad, I jumped. और उस बेटे ने उससे कहा, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, इसीलिए मैं कूद गया। You see, the assurance, the confidence, the faith this little boy had that this is my father. When I jump from wherever I jump, my father will hold me. He will not let me down. Look at the trust he had on his father. मेरे प्यारो, आप इस चीज को देखिए, उस बेटे के अंदर अपने पिता पर किस तरह से भरोसा है।
उसने उस बेटे ने पिता से कहा कि देखिए, मैं इतने ऊंचाई से, चट्टान की ऊंचाई से कूद रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे पिता हैं और आप वहां खड़े हुए हैं, और आप, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे कभी गिरने नहीं देगा। ये भरोसा है उस बेटे का। Dear brothers and sisters, how true this is for every believer. प्रिय भाइयों बहनों विश्वासियों, हर एक विश्वासी के लिए ये बात कितनी सच है। You see, this is an illustration just to show the blind faith and trust the little boy had on his father. और मेरे प्यारों, ये उदाहरण इसलिए दिया है ताकि वो उस छोटे से बच्चे का एक अंधा विश्वास जो अपने पिता पर उसने रखा है। How often, dear brothers and sisters and dear believers, how often do we trust our God blindly that my God will do anything for me? और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कितनी बार हम लोग इस प्रकार से एक अपने परमेश्वर पर अंधे के समान विश्वास रखते हैं कि जब मैं कूदूंगा, जब मैं समस्या में गिरूंगा, मुझे पता है मेरा परमेश्वर वहां पर है, वो मुझे You, संभाल you, लेगा। you see, this little boy had no fear at all, is it not? ये देखिए फिर प्यारों, एक छोटा सा बालक है, लेकिन इसके अंदर कोई भय नहीं है। You see, if he had a fear, he would have not jumped, isn't it? He had no fear. The only thing that he was looking at is his father and the confidence that. So, two things. He looked at his father, he had this confidence that my father will hold me, he will not drop me, nothing will happen to me. और इसलिए मेरे प्यारों, हम देखते हैं अगर इस बालक के अंदर, इस बच्चे के अंदर कोई भय होता, डर होता, तो क्या होता? ये कभी भी वहां से छलांग नहीं लगाता। लेकिन क्योंकि वो पूरी तरह से उसे विश्वास था, संपूर्ण भरोसा था कि मेरा पिता वहां पर है और मैं इस ऊंचाई पर खड़ के जब मैं कूद रहा हूँ तो जरूर मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे पकड़ लेगा। निडर होकर के वो जंप लगा, कूद गया और पिता ने उसे पकड़ा। You see, that illustration is to remind us of how much we need to trust our God, because our God is greater than that boy's father, is it not? और मेरे प्यारो, ये उदाहरण इसलिए दिया है मैंने ताकि हम उस चीज को, उस परमेश्वर पिता जो हमारी रक्षा करते हैं, संभालते हैं, ये इसीलिए दिया है ताकि हम इस चीज को समझ पाए। हमारा परमेश्वर जो पिता है वो उस शारीरिक पिता से कितना बड़ा है। Ah, beautiful. It's शारीरिक पिता से बड़ा है हमारा our God and our Father. No, isn't it beautiful if we trust Him that way? और मेरे प्यारो, हमें इस प्रकार से भरोसा रखना है। You see, when sometime back, a person, a pilot, one one who runs the flight, he's called a pilot. So a pilot once gave a testimony like this. और हम एक बार इस प्रकार से, एक जो पायलट है जो हवाई जहाज को उड़ाता है, इस प्रकार की उसने गवाही दी। He gave a testimony that when he was learning to fly an aircraft, an aeroplane, he had this experience. और उसने इस प्रकार से गवाही दिया कि जब वो हवाई जहाज को उड़ाने का जो है प्रैक्टिस किया करता था, अभ्यास करता था, तब उसने इस प्रकार की गवाही को दिया। You see, that pilot, these training pilots, will always have an instructor, will always have a master with them when they are learning to fly. और देखिए, ये जो पायलट होते हैं, जब वो हवाई जहाज को उड़ाने का अभ्यास करते हैं तो वहां पर उनको निर्देश देने के लिए, आज्ञा देने के लिए, नियम सिखाने के लिए और तौर तरीके बताने के लिए एक सहायक होता है और उनको जो बता रहा है कैसे कैसे करना है। So this trainee pilot took the aircraft to a height, to a very distant height. और ये जो पायलट था, उसने क्या किया, जिस जहाज को वो उड़ा रहा था, उस हवाई जहाज को एक बहुत ऊंचाई पर लेकर के गया।
And then the instructor, the master who was sitting near the trainee pilot, he said, you have to now dive deep, which means you have to ulta. You have the flight has to come ulta and it has to continue to go like that. Yes, uncle. Go ahead. You और understand? उसके बाद उसके बगल में जो बैठा हुआ जो जो उसको निर्देश देने वाला निर्देशक ने कहा, अभी इतनी ऊंचाई तक तू आ गया है, अब एकदम से वहां से तुझे इस जहाज को उल्टा नीचे की तरफ जाने दे। You see, normally when they do that, it's only for a short time. But this master said, you have to continue to go dive deep. You have to continue to dive ulta until I tell you. और उसके बाद इस निर्देशक ने कहा कि जब तक मैं तुझसे ना को तो ऊपर से नीचे की ओर गिरने दे, नीचे की ओर उल्टा आने दे। You see, now, if you can see my hand, normally the flights fly like this, but when you go to a certain height, this master said you have to go down like this. And you continue to go till I tell you. You understood? और इस प्रकार से देखिए, जब जो जो जहाज होता है वो सीधा उड़ता है, लेकिन जो जो निर्देशक था उसने उससे कहा, जब वो ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो क्या करते हैं, उस जो जो जहाज होता है उसको क्या करते हैं, ऐसा नीचे की ओर आने आने देते हैं। उसी प्रकार से उस निर्देशक ने कहा, जब तक मैं तो उससे रोकूं ना तब तक तू इसे जाने दे। Now this the training pilot was afraid. He was not prepared for this. और लेकिन हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये जो 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 पायलट था वो उसके लिए तैयार नहीं था, वो डर रहा था, भय खा रहा था। As he was coming down like this, suddenly the engine stopped. और जैसे ही वो नीचे की तरफ आ रहा था, क्या देखते हैं, इंजन बंद हो जाता है। And when the engine stopped, the flight then went out of control. Normally, when you control the flight only, you can take it to wherever you want to go. But because he came in this direction and the engine stopped, the flight went out of control. और जैसे ही वो उल्टे उल्टे दिशा में आ रहा था, क्या हुआ, जब इंजन बंद हो गया, और जब सामान्यतः इंजन बंद हो जाता है तो किसी भी यान को जो है नियंत्रण में रखना बस की बात। इसीलिए जैसे ये जो 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 जहाज था, यान था, वो नीचे की तरफ उल्टी दिशा में आ रहा था, और जैसे इंजन उसका बंद होता है वो नियंत्रण से बाहर हो जाता है। Now, the training pilot thought the master, the instructor, was going to help him, but the instructor was not going to help him. और उसके बाद में जो जो जो, जो निर्देशक था, उसने क्या किया, जो उसको सहायता देने वाला था, उसने सहायता नहीं किया। Then the pilot, because he's in a training, the pilot then thought what he should do. Then he did something, and then the flight came back to its normal position. और जैसे ही ये जो व्यक्ति जो जो, जो पायलट था, उसने सोचने लगा, घबराने लगा, मैं क्या करूं, तब उसने कुछ किया, और उसके बाद में ये जो फ्लाइट था वो यान क्या नियंत्रण में वापस आ गया। Then this pilot was so afraid, he was so worried. So he turned and looked at the instructor as to why you did not help me during that time. और उसके बाद में ये जो 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 पायलट था बहुत ज्यादा घबरा गया, और उसके बाद जो 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 निर्देशक था उसकी ओर वो बड़े ऐसे घबराहट भरी नजरों से देखता रहा, और उससे कहा, क्यों तूने मुझे ऐसे समय में मदद नहीं किया। You know what the instructor and the master told the pilot? आपको पता है जो निर्देशक था उसने पायलट को क्या कहा? He told this pilot, there is no position, no situation that I cannot get you out of. Meaning, whatever be your situation, I would have still got you out of it because I know what I should do at what time. और उस जो निर्देशक ने उससे कहा, ऐसी अवस्था नहीं है जिसमें से मैं तुझे बाहर नहीं निकाल पाता। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि कौन सी अवस्था में क्या करना है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता हो, लेकिन मैंने तुझे उस अवस्था में पढ़ने दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कब क्या करना है। You see? And he told the pilot,
If you want to learn flying, you will have to go up again and do the same thing again. और उस निर्देशक ने उससे क्या कहा, अगर तुम्हें जो है उड़ाना सीखना है तो तुम्हें फिर उतनी ही ऊंचाई तक ऊपर जाना है और फिर से नीचे आकर के वही करना है। You see, now this pilot was a child of God. He later on became an evangelist. और ये जो पायलट था, ये पायलट क्या है, वो परमेश्वर का एक विश्वासी था और उसके बाद में फिर वो एक इवांजेलिस्ट और प्रभु का सेवा करने लगा। At that time, during his experience of learning, God spoke to him. और जैसे ही वो उस समय में जब सीख रहा था, परमेश्वर ने उससे बात किया। And then you know what God spoke to the pilot at that time? और आप जानते हैं उस समय में परमेश्वर ने उस पायलट से क्या बात किया? God told him, there is no situation that you can get into which I cannot get you out of it. There is no situation like that where you get into it and God cannot take you. Never does that happen. और उस परमेश्वर ने उससे क्या बात किया? परमेश्वर ने उससे बात किया कि ऐसा कोई भी अवस्था नहीं है जिसमें से परमेश्वर तुझे बाहर ना निकाल सके। That is right. Bahar na nikal sake. There is never a situation like that. If you trust me, you will be all right always. That is what God told this great man of God that day. और इस महान व्यक्ति को परमेश्वर ने यही बात सिखाया है कि तुझे ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसमें से मैं तुझे बाहर ना निकाल सकूं। ये व्यक्ति ने इस चीज को परमेश्वर ने उसे सिखाया, समझ गया। And this man of God writes as a testimony that because of that lesson, many times in his ministry, the Lord has proved himself, and that was a great lesson he learned, which was useful in his future ministry. और इस बात को हम देखते हैं, उसके बाद में फिर उसने अपनी जो है परिचय पुस्तिका में उसने अपनी गवाही को लिखा है कि ऐसे उसकी सेवकाई में कई बार ऐसे जोखिम भरे परिस्थितियां रही, उन सब में क्या हुआ, परमेश्वर उनका सहायक बना। You see, all right, okay. Now, as I told you, this Psalm 121 is in a group of Psalms from 120 to 134, known as the Song of Ascent. जिस प्रकार से हमने पहले कहा है कि भजन संहिता 122 से लेकर के 133 तक हम देखते हैं, तो ये भजन कौन भजन कहता है माने गए हैं? ऊपर चढ़ते समय गाए जाने वाले भजन। All right. Now, in some English Bibles, you will also find in the Psalm, before you read the Psalm, the heading of the Psalm given, a song of degrees is also mentioned in some English Bibles. कुछ बाइबल में जो है नीचे उतरते समय गाए जाने वाले भजन, इस प्रकार से उनका शीर्षक भजन में उस भजन का ऊपर लिखा रहता है। It is called as a song of degrees. In English, it's called a song of degrees. Now, song of degrees means when you subsequent journey, which means you've gone to one journey. Now you're going again on another journey. Again, you're going on another journey. Now, every time you go on a journey, you use this song. That is why it is called a song of degrees. और इसलिए क्या होता है, ये जो भजन इसलिए जो यात्रा के भजन कहे गए हैं, जाने जाते हैं, क्योंकि जब आप क्या करते हैं, एक यात्रा पर आप एक जगह तक आप पहुंच गए, वहां से फिर आप दूसरी जगह पर पहुंच गए, वहां से फिर तीसरी जगह के लिए आप जा रहे हैं, इसीलिए ये भजन यात्रा के भजन जो है कहे गए हैं। You see, I told you, no, the Jews have to go to the temple 3 times in a year for 3 festivals at different periods of time. और इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इस्राएलियों के जो मुख्य 3 पर्व थे और वे और अलग-अलग समयों में पर्व मनाए जाते हैं। And so every time when they go, they sing the psalm. That is why this is called the song of degrees, which means repetitively they are going on the same journey for different festivals to the same place. So it's called the song of degrees. और इसलिए ये भजन जो है उतरने वाले और बार-बार दोहराए जाने वाले भजन माने गए हैं, क्योंकि ये इस्राएली लोग, यहूदी लोग क्या करते थे, इन पर्वों को मनाने के लिए वो यरूशलेम उस मंदिर में उस पहाड़ी पर जाया करते थे और बार-बार इन भजनों को उसी रीति से
वो गाया करते थे। इसीलिए इन भजनों को जो है ये जो नीचे उतरने वाले या फिर सॉन्ग ऑफ डिग्री मतलब एक मान्यता प्राप्त भजन माने गए हैं। All right. And this psalm also speaks of the peace of God when you go to God's house. और ये भजन इस बात को बताते हैं परमेश्वर की शांति के विषय में। जब तुम परमेश्वर के मंदिर की ओर परमेश्वर के भवन में जाते हैं। And as you go to the temple to enjoy the peace of God, you are also the care of God is upon you. और इसलिए जब आप उस परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, इसीलिए परमेश्वर के मंदिर में उस परमेश्वर की जो सुरक्षा भी आपके साथ वहां पर रहती है। Right now, this psalm also in some Bibles it's the psalm to the keeper of Israel. That is what is mentioned in some English Bible, a psalm to the keeper of Israel. It is mentioned as song of degrees, and then some description is given, a psalm to the keeper of Israel. और कुछ बाइबल में जिस प्रकार से जिस मान्यता प्राप्त भजन को माना गया है, और कहीं कहीं बाइबल में लिखा हुआ ये भजन जो है उस रक्षक के लिए समर्पित ये भजन है। What is it written in Hindi, Deepu? Do you have any description of this Psalm 121 in Hindi? Heading? परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा Correct. रक्षक लिखा है। Correct. So that is what it is. A psalm to the keeper of Israel is what you will find as a heading in the English Bible. That is what you got it in Hindi also. Yes, exactly. Right. So now who is the keeper? बाइबल में Yeah. So who is the keeper of Yes. Israel? The Lord God Almighty. He is the keeper of Israel, is it not? और इस्राएलियों का रक्षक कौन है? इस्राएलियों का रक्षक कोई और नहीं वरन वो परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर है। All right. Okay. It's 8 o'clock now. We'll stop here. God willing, we will continue in the next class. More we'll study about Psalm 21. It's a very interesting psalm. We will study more about that. God bless you. I hope it's been a useful study today. And thank you once again, Enosh, for stepping in. God bless you. And thank you, Deepu, for your translation also. God bless you. यस, प्रभु के धन्य नाम को महिमा मिले। और आज प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम प्रभु का वचन को सीख सके। आने वाले दिनों में हम और गहराई से भजन संहिता 121 का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन में प्रभु ने हमारी सहायता की, इसलिए धन्यवाद। इनोस ने भी बीच में अनुवाद करने में मदद की, इसलिए धन्यवाद। बाकी सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और ये अवसर प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए प्रभु के नाम को महिमा देते हैं।